Okay, let's talk. आइए बात करते हैं। This mind, ये जो मन है, you have to handle it. आपने इसको संभालना है। Anybody sad, sad? कोई दुखी दुखी है क्या? Okay, 1, 2. Anybody else sad? और कोई 3, दुखी है? 4. Okay. That means your mind is on something इसका अर्थ है आपका मन किसी चीज पर लगा हुआ है, which is making you sad. जो बात आपको दुखी बना रही है। Correct? Psalm 42, भजन संहिता 42 verse 5. वचन 5। Okay, let's ask some question. आइए कुछ सवाल पूछते हैं। Why am I discouraged? मैं निराश क्यों हूँ? Suppose your leg is paining for 7 days. मान लो आपका पैर 7 दिन से दर्द कर रहा है, Where will your mind be? तो आपका मन कहाँ लगा होगा? So your mind is tied to the leg. तो आपका जो मन है पैर से बंधा हुआ है। Question. सवाल है, Right now, इस वक्त what is tied to your mind? आपके मन से कौन सी चीज बंधी हुई है? Your mind can never be left alone. आपका मन अकेला छोड़ा ही नहीं जा सकता, It has to be tied to something. और किसी ना किसी से बंधा होना जरूरी है। Why not we tie our mind with the right things? क्यों ना हमारे मन को हम सही चीजों से बांध दे। So what should I join my mind to? तो मैंने मेरा मन किसके साथ जोड़ना है? Hope. आशा। See, when hope comes, जब आशा आती है ना, sadness goes. वो जो दुख है निकल जाता है। And one more thing. और एक चीज, In my deepest pain, मेरे सबसे गहरे दर्द में I should learn to praise the Lord. मैंने प्रभु की स्तुति करना सीखना है। Who does not have pain in life? किसके जीवन में दर्द नहीं होता? All have. सबके होता है। Only advantage for you and me, आपके और मेरे लिए सिर्फ फायदा इतना है, God is with you. प्रभु आपके साथ है। So the key is learn to praise the Lord. तो चाबी है कि प्रभु की स्तुति करना सीखो। This morning I was just worshiping the Lord. इस सुबह मैं प्रभु की आराधना कर रहा था, So I just felt I need to say something. तो मुझे ऐसा लगा मैंने आपसे कुछ कहना चाहिए, For some of you, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए this will be good. ये अच्छा होगा। So the Lord put in my heart a word. तो प्रभु ने मेरे हृदय में एक शब्द डाला, It's called immediately. उसे कहते हैं तुरंत। So I was also thinking, what is this word? तो मैं भी सोच रहा था ये शब्द क्या है। So the Lord said, तो प्रभु ने कहा, think about people coming to me. Think about it. सोचो What I did for them. मैंने उनके लिए क्या किया, And what was the most common word? और उसमें जो एक सामान्य शब्द क्या था। So I began to search. तो मैं ढूंढने लगा, And the most common word, और सबसे सामान्य शब्द immediately. तुरंत ही, Immediately. तुरंत ही। So I searched the Bible तो मैंने बाइबल में ढूंढा, and I got 8 times और मुझे 8 बार मिला immediately. तुरंत ही। Matthew 8 verse 3. Leper comes to Jesus. कोढ़ी यीशु के पास आता है, Jesus touched him यीशु उसे छूते हैं, and he said, I'm willing. और वो कहते हैं मेरी इच्छा है, Immediately. तुरंत ही। Actually, you can know the whole Bible, आपको पूरा बाइबल पता हो सकता है, but you have to know God's heart for the moment. लेकिन इस क्षण के लिए प्रभु का हृदय क्या है वो पता होना जरूरी है। The moment. क्षण के लिए वो, What makes you different from everybody else? बाकी सबसे कौन सी चीज आपको अलग बनाती है? You know God's heart for the moment. आप इस क्षण के लिए प्रभु का हृदय जानते हो। Once you know, एक बार जब आप जानते हो ना, you are at rest. तो आप विश्राम से भरे होते हो। Mark 2 verse 12. मरकुस 2 में 12, A paralyzed man. लकवे का एक रोगी, Jesus said, यीशु ने कहा, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा किए गए, Get up. उठ जा। Immediately. तुरंत ही। How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Acha. Okay. Let me talk about belief. विश्वास के बारे में आपसे बात करना है। Jesus said, यीशु ने कहा, I don't want your belief to be so big. मैं नहीं चाहता तेरा विश्वास इतना बड़ा हो। How big should your belief be? तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? Anybody has this much belief in the Lord this morning? किसी का इतना प्रभु में विश्वास है क्या? Bas. बस Immediately. तुरंत ही। I pray immediately. मैं प्रार्थना करता हूँ तुरंत ही। One more. और एक, Luke 8:44. लूका 8 में 44, Woman with the issue of blood. वो स्त्री जिसको लहू बहने की समस्या थी, She didn't even wait for Jesus. वो यीशु के लिए रुकी भी नहीं। She said, उसने खुद कहा, if I touch this person, अगर इस व्यक्ति को मैं छू लूंगी, I know मैं जानती हूँ today, आज, right now, इस वक्त, as I touch, जैसे मैं छूंगी I will be healed मैं चंगी हो जाऊंगी। immediately. तुरंत ही। I pray for some immediate
needs to be met today. मैं प्रार्थना करता हूँ आज कुछ जो है तुरंत जो जरूरत है पूरी हो जाए। I want you to be with me because I think I want you to understand the season that you are going to enter now. मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ रहो क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि जो मौसम में आप अभी प्रवेश करने वाले हो उसे आप समझो। समझना है, but that's important. वो महत्व का है। Because when seasons change, clothes change, food changes, natural. क्योंकि जब जो है मौसम बदलता है, कपड़े बदलते हैं, खाना बदलता है स्वाभाविक रूप में। Yeah, in the same way, when spiritual seasons change, उसी प्रकार जब आत्मिक मौसम बदलते हैं yeah, some things will have to change. कुछ चीजें बदलना जरूरी है। Yeah, so please listen. Huh? तो सुनिए आप Okay, 2 Corinthians 10, verse 4. दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय वचन 4। So we use God's mighty weapons. तो हम प्रभु के शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करते हैं। Yeah, and this new season which you are now going to enter, और यह नया मौसम जिसमें अभी आप प्रवेश करने वाले हो, yeah, we are going to use some spiritual weapons. हम कुछ आत्मिक हथियारों का उपयोग करने वाले हैं। God has given you mighty weapons. प्रभु ने आपको शक्तिशाली हथियार दिए हैं। Yeah. What are these weapons? हथियार कौन कौन से हैं? Yeah. The word of God, प्रभु का वचन, the armor of God. प्रभु के अस्त्र शस्त्र। Next weapon, अगला हथियार prayer. प्रार्थना। Next is fasting. उसके बाद है उपवास। Next is the name of Jesus. उसके बाद है यीशु का नाम। Next is the blood of Jesus. उसके बाद है यीशु का लहू। And the last और आखिरी is स्तुति। आपके हाथ में स्पैनर है, स्पैनर। आपके हाथ में पाना है। हाँ, पाना। Then you have screwdriver. फिर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है। Then you have plier. फिर आपके पास प्लायर है, हाँ, पकड़ पकड़ है। And you have a हथौड़ा. और आपके पास हथौड़ा है। 4 things. 4 चीजें हैं। ये 4 हथियार में से मैं क्या लूंगा? अच्छा, सवाल, वो जो स्पैनर है उससे मैं ठोक सकता हूँ क्या? नहीं ठोक सकता हूँ, लेकिन वो शुरू करेगा आज, शायद अगले साल खत्म होगा। लेकिन अगर मैं हथौड़ा यूज करूंगा, 1 2 boom. आमेन। What lesson did we learn? हमने कौन सा पाठ सीखा यहाँ से? You should know आपको पता होना है which weapon to use. कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, Where? कहाँ पर। So, Pastor, what are you trying to say? तो पास्टर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? We are entering a season हम एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहे हैं where you have to use the weapon of praise. जहाँ पर आपने स्तुति का हथियार इस्तेमाल करना है। Psalm 8 verse 2. भजन संहिता 8 में 2। When children begin to praise God, जब बच्चे प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हैं something begins to happen. कुछ तो होना शुरू होता है। Okay, tell me, what's the beauty when children sing a song to the Lord? मुझे बताओ कि कौन सी खूबसूरती है उसमें जब बच्चे प्रभु की स्तुति करते They forget about themselves. हैं, वो खुद के बारे में भूल जाते हैं, Yeah, they enjoy the Lord. वो प्रभु का आनंद लेते हैं, They do it with their heart. वो अपने दिल से करते हैं। So if I just learn few things from a child तो यदि मैं अगर कुछ चीजें बच्चे से सीख जाऊं and I begin to praise the Lord like them, और मैं उनके जैसे अगर प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दूं something is about to happen in the name of Jesus. तो कुछ तो होने वाला है यीशु के नाम में। So when you begin to praise, तो जब आप स्तुति करना शुरू करते okay, हो, now let me help you. अभी आपकी मदद करने दो। Actually, we are entering a season हकीकत में हम ऐसे मौसम में प्रवेश कर where रहे I हैं heard the Lord clearly जहाँ पर प्रभु को मैंने बहुत स्पष्ट रूप से सुना है, again and again बार बार सुना है, telling, कहते हुए, tell my children, मेरे बच्चों से कहना start to praise me. मेरी स्तुति करना शुरू कर दो। Of course, out of love. हाँ, प्रेम के स्थान से ही, Of course, out of revelation. हाँ, प्रकाशन के स्थान से ही, But लेकिन it's going to become a weapon. वो हथियार बनने वाला है। And this weapon, और ये जो हथियार है it will shut your enemy's mouth. वो आपके शत्रु के मुंह को बंद कर देगा। वो लिखा है, देखा? This kind of praise has power to shut Satan's mouth. इस प्रकार की स्तुति में शैतान का मुंह बंद करने का सामर्थ्य है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे आवाज आ रहे हैं जो आपके खिलाफ है? कितने लोग बोलते हैं कभी कभी, काश ये आवाज बंद हो जाए। Yes. प्रभु बोल रहा है वो आवाज बंद होने वाला है, तू अपने मुंह को खोल। Amen. And then it says आगे वो कहता है that praise will silence the madness of those who oppose you.
वो स्तुति जो है, जो लोग तेरा विरोध करते हैं उनके पागलपन को शांत कर देगी। शांत करेगा. How many of you feel you're weak? कितने लोगों को लगता है कि आप कमजोर हो? So weak people should learn to praise God. तो कमजोर लोगों ने प्रभु की स्तुति करना सीखना है। Your weak praise. आपका कमजोर स्तुति यानी आपके मुंह में आवाज भी नहीं. आपको पता है जब तकलीफ होता है आपका मुंह बंद किया जाता है, लेकिन उस तकलीफ में अगर तूने प्रभु पर विश्वास किया और उसके सुंदरता को देखा और अगर आपने आवाज उठाया, मैं तुझे कहता हूं उस वक्त ऐसी ताकत तुझ पर आएगी. How many of you feel that in your mind the enemy defeats you? कितने लोगों को लगता है कि आपके मन में शत्रु आपको हराता है? How about God building a stronghold in your mind? कैसा होगा अगर आपके मन में प्रभु मजबूत गढ़ बनाए तो? How it will be if God's strongholds begin to be built? कैसा होगा अगर प्रभु के मजबूत गढ़ आपके मन में प्रभु बांधना शुरू कर दे तो? Let me just tell you two things because I think I should tell you because there are too many things. I just want to say two things. मैं आपसे दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। Praise will restore your mental health. स्तुति जो है आपकी मानसिक सेहत को पुनर्स्थापित करेगी। You know, this mind, आपको पता है ये मन, it requires something. उसे किसी चीज की जरूरत है And the most important thing for this mind is peace. और इस मन के लिए सबसे महत्व की बात है शांति। And Jesus is called the Prince of Peace. और यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया है। This mind also requires something called joy. और इस मन को और एक चीज की जरूरत है जिसे कहते हैं आनंद। And Jesus said, और यीशु ने कहा, I give you joy. मैं तुझे आनंद देता हूँ। This mind ये जो मन है requires love. इसे प्रेम की जरूरत है। Listen, सुनो, if you have a glass of sweet water अगर आपके पास मीठे पानी का ग्लास है and if somebody pushes you, और अगर कोई आपको धक्का देता है so what happens? तो क्या होता है? You move. आप आगे पीछे हो जाते because somebody pushed you. क्योंकि किसी ने आपको धक्का दिया है। But what comes out of the glass लेकिन ग्लास में से क्या बाहर आता है? is not bitter water, वो कड़वा पानी नहीं, sweet. मीठा। It's not what is happening outside, बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं है, it's what is inside. अंदर क्या है उसके बारे में है। Praise, स्तुति it will do something inside you. वो आपके अंदर कुछ करेगी। Jesus said, यीशु ने कहा, if you want good fruit, अगर तुझे अच्छा फल चाहिए the tree should be good. तो पेड़ अच्छा होना जरूरी है And only the Lord can make the tree good. और सिर्फ प्रभु ही पेड़ को अच्छा बना सकते हैं। Don't think about fruit, फल के बारे में मत सोचो, think about the tree. पेड़ के बारे में सोचो। Good tree, अच्छा पेड़, good fruit. अच्छा फल। Job 14:1 says, अय्यूब 14:1 कहता है, life has got troubles, जीवन में तकलीफें हैं, but when you're pushed, लेकिन जब आपको धकेला जाता है, when you're squeezed, जब आपको खींचा जाता है, what is inside will come. अंदर क्या है वो बाहर आएगा। And this whole month, और ये पूरा महीना I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ, God is going to do something in your mind. प्रभु आपके मन में कुछ करने वाले हैं। When you're pushed, pulled, जब आपको ढकेला जाता है, खींचा जाता है, stress is created in the mind. मन में तनाव निर्माण किया जाता है, You are worried, आप चिंतित होते हो, but there is a beautiful promise. लेकिन एक सुंदर वादा है। Isaiah 61:3. यशायाह 61:3 God is saying, प्रभु कह रहे हैं, I want you to wear a garment. मैं चाहता हूं तो एक वस्त्र पहन। आप एक कपड़ा पहनिए, उसे पहन लो, अच्छा रहेगा आपके। उसे कहते हैं स्तुति के वस्त्र। आमीन। जब आप ये पहनोगे ना, प्रभु कहता है मैं कुछ तेरे जीवन में से निकालूंगा। आमीन। और प्रभु क्या निकालने वाले? व्हाट आर यू गोइंग टू रिमूव? प्रभु क्या निकालने वाले हैं? भारीपन, भारीपन, स्ट्रेस, तनाव। How many of you want to sleep like a baby? कितने लोग छोटे बच्चे के जैसे सोना चाहते हैं? You need this. तो आपको इस चीज की जरूरत है। Okay. Number 2. Praise will bring fruitfulness in your work. स्तुति जो है आपके काम में फल ले आएगी। Okay, take the scripture. ये वचन लीजिए, Psalm 67, भजन संहिता 67 verse 5, verse 6. वचन 5 और 6। May the nations praise you. होने तो राष्ट्र आपकी स्तुति करे। Then, तब when you praise the Lord, जब आप प्रभु की स्तुति करोगे तब the earth पृथ्वी जो है will give fruit.
वो आपको फल देगी। Earth and work is always connected in the Bible. पृथ्वी और काम हमेशा बाइबल में जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर भी उस पर काम कर रहे हो ना, वो पृथ्वी का ही प्रोडक्ट है। यस, आप खुद पृथ्वी का प्रोडक्ट हो, सिर्फ सांस प्रभु का है, बाकी इधर का ही है। प्रेज, स्तुति। रोते क्यों हो? स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दो, सी व्हाट गॉड विल डू इन योर वर्क। फिर देखो प्रभु आपके काम में क्या करेंगे। आर यू विथ मी? आप मेरे साथ हो? अच्छा, नाउ लिसन। अभी सुनो, When Adam and Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया, God did not curse them. प्रभु ने उनको श्राप नहीं दिया, He cursed the ground, उन्होंने उस जमीन को श्राप दिया and they had to work on the ground. और उनको जमीन पर काम करना था। You think this is the ground, and He curses the ground. आप ये सोचो कि ये जो जमीन है और जमीन को प्रभु श्राप देते हैं। What is curse? श्राप क्या है? Curse means you will not get what you want. श्राप का मतलब आपको जो चाहिए आपको नहीं मिलेगा वो। And then they start to work on it. फिर वो उस पर काम करना शुरू करते हैं। The land, the earth was not cooperating. वो जमीन, वो पृथ्वी जो है सहकार्य नहीं दे रही थी। That means वो ये नहीं बोल रहा था we are friends. Come on, we are friends. We are friends. इसका अर्थ वो ऐसा नहीं बोल रही थी कि हम दोस्त हैं। They are saying no, no, no. वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, क्या था? कांटे थे. There were thorns, there were thistles. उसमें कांटे और ऊंट कटारे थी। That means they were opposing. इसका अर्थ है वो विरोध कर रहे थे। But when you praise God, लेकिन जब आप प्रभु की स्तुति करते हो, God is saying, प्रभु कह रहे हैं I will help you to fly over these things. मैं तेरी मदद करूंगा इन सारी चीजों के ऊपर से निकल जाने में। So don't do like that. इधर आओ. तो ऐसे मत करना। You start work आप काम करना शुरू करते हो, and you say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. कुछ हुआ क्या नहीं? कुछ हुआ क्या नहीं? आप कुछ कहते हो हुआ प्रभु क्या की नहीं? स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, कुछ हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। Not like that. ऐसा नहीं, Not like that. ऐसा नहीं। You should know आपको पता होना है, when you, like a child, जब आप बच्चे के जैसे every day, हर दिन you just enjoy the Lord. आप प्रभु का आनंद लेते हो, It will affect your work in the name of Jesus. उसका प्रभाव आपके काम पर पड़ेगा यीशु के नाम में। Deuteronomy 28 verse 12. व्यवस्था विवरण 28 में 12। Uh-huh. Who should bless your work? आपके काम को किसने आशीष देना है? God. प्रभु ने। God should bless. प्रभु ने आशीष देना है। तू कितना भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी गुणवान क्यों ना हो, कितना भी, कितना भी। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हूँ, वो जो टैलेंट है ना, वो भी प्रभु ने दिया है तुझे। वो कला भी प्रभु ने दी है। सब उसने ही दिया है, मालिक वो है। आमेन। So when you work, जब आप काम करते हो ना, you need somebody's hand. आपको किसी के हाथ की जरूरत है। If that nail pierced hands come over your work, अगर वो खिले से छिदा हुआ हाथ आपके काम के ऊपर आ गया, I tell you, तो मैं आपसे कहता हूँ oh, आमेन। let's take the last verse. आइए आखिरी वचन देखते हैं। 1 Kings 4:25. पहला राजा 4 में 25। During the time when Solomon was the king, जब सुलेमान राजा था उस समय के दौरान the people in Israel, इज़राइल में जो लोग थे, right from the north उत्तर से to south, दक्षिण तक, east पूरब से to west, पश्चिम तक, God gave some grace. प्रभु ने कुछ अनुग्रह दिए। It's God. वो प्रभु है। Today Solomon is not my king. आज सुलेमान मेरा राजा नहीं है, Today Jesus is my king. आज यीशु मेरे राजा है। So when I come under his lordship, तो जब मैं उनकी ईश्वरीयता के नीचे आता हूँ, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that you will live in peace. आप शांति में जियोगे, Because the Lord is your king, क्योंकि प्रभु आपके राजा है, इसीलिए you will live in safety. आप सुरक्षितता में जियोगे। ये जो राजा है ना, ये जो राजा है, इसके राज के समय ऐसा एक भी परिवार नहीं था, उसकी जो प्रजा उसमें एक भी परिवार नहीं था जिसके पास घर नहीं था। ये इसके राज में हो सकता है, तो क्यों नहीं आपके प्रभु के राज में क्यों नहीं हो सकता? आमीन। God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको गीत नहीं आते हैं ना प्रभु की स्तुति करने, कोई प्रॉब्लम नहीं। भजन संहिता है ना, उसको खोलो, सवेरे एक पढ़ के प्रभु को सुनाओ, दोपहर को थोड़ा समय निकालो, वापस वही पढ़ के सुनाओ, और रात को सोने के पहले वही पढ़ के वापस सुनाओ। आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो। May God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे।